Hello everyone, welcome to today's class. We are already studying about the image formation by spherical mirrors. We have already studied the image formation from a concave mirror. Okay, we have seen the rules, we have seen the image formation for an extended object. Okay, so now in today's class we are going to study about the image formation by convex mirrors. Okay, by convex mirrors. Okay, so before moving on to the image formation by an extended object, we are going to summarize the rules which we have already studied, and we are going to draw the ray diagrams for the case of convex mirror. Okay, so the first rule says that if the incident ray this is the pole. In case of a convex mirror, the focus and center of curvature lie behind the mirror. Okay, so if a light ray is incident parallel to the convex mirror, so the reflected ray will go to the focus. So in this case, in case of convex mirror, since it is diverging, the reflected ray goes in this manner. Okay, जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, सो ये सीके कहां से पास हो रही है? फोकस से. ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. सो द फर्स्ट रूल कि पैरेलल रे कहां से जाती है? फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेकेंड, द कॉन्वर्स ऑफ दिस वन, this is the pole, focus, center of curvature. Focus and center of curvature lie behind the mirror for the case of convex. Now, if the ray of light is incident at focus, if the ray of light is incident at focus, if it is incident like this, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि ये कहां पर इंसिडेंट है? हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे इंसिडेंट है. इट इज इंसिडेंट एट फोकस, फोकस पर इंसिडेंट है. सो अगर फोकस पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे चली जाएगी? पैरेलल. इसका कॉन्वर्स कि अगर फोकस से इंसिडेंट है तो कैसे चली जाएगी? पैरेलल. द रूल्स आर सेम फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. Okay, just there is a difference in the ray diagrams. Now, the third one, if the incident ray is such that it passes through the center of curvature, incident ray अगर center of curvature से पास हो रही है, ठीक है, suppose the incident ray is like this. इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट रे कहां पर इंसिडेंट है? हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां से पास हो रही है. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ फॉलो करती है. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जा रही है तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ फॉलो द सेम पाथ, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ से जाएगी. तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ विल फॉलो द सेम पाथ, दोनों रेज सेम रहेगी. दिस वाज द थर्ड रूल. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर कॉन्केव मिरर आल्सो. द फोर्थ वन, if the ray of light is incident at pole, if the ray of light is incident at pole, then it undergoes normal reflection. Okay, as in the case of plane wave, the angle of incidence is equal to angle of reflection. It will undergo normal reflection. So these are the four rules for the convex mirror. The rules remain same, just there is a difference in the ray diagrams.
down. Now moving on to the ray diagrams for convex mirror. Okay, the image formation. So let's draw a table. Position of object, position of image, size and nature. Okay, so the first one, we place the object at infinity. The first case. Let us draw a ray diagram. Okay, the object is placed at infinity outside the principal axis. Okay, so there will be two rays. We consider two rays. So the first ray, we know that the rays are parallel. Wait a second. We consider parallel rays in case of an object placed at infinity, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि इंफिनिटी से रेस कैसे आ रही है, पैरेलल. सो दीज आर से द two parallel rays which are incident to the convex mirror. ठीक है, ये दोनों parallel rays कैसे चली जाएगी? They will go through the focus after reflection. तो दोनों rays एक ऐसे चली गई, ठीक है, और दूसरी रे जो है वो ऐसे चली गई. ठीक है, ये दोनों रेज ऐसे चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन. दोनों रेज जो है वो कैसे दूर जा रही है, डाइवर्जिंग, फोकस में मीट नहीं करेगी. तो हम क्या करेंगे, हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके फोकस के ऊपर मीट कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल रेज है दे pass through the focus after reflection. तो दोनों रेज कहां पर मीट हो गई, फोकस पे. सो द इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस. इमेज फोकस पे बनेगी. ठीक है, सिंस फॉर दिस बिग ऑब्जेक्ट द इमेज इज वेरी स्मॉल, सो द इमेज इज से हाईली डिमिनिश्ड और यू कैन से पॉइंट साइज. Plus the nature, since the image is formed behind the mirror, so the image is virtual and erect. Virtual image is erect. So the image is virtual and erect. So this is the first ray diagram. Second ray diagram. We place the object anywhere between infinity and pole in front of the mirror. Anywhere between infinity and pole. This is the pole, the focus, the center of curvature. Suppose we place the object over here, okay, anywhere between infinity and pole. Now, first ray incident we take parallel ray.
एक पैरेलल रे ले लेंगे विच इज इंसिडेंट। पैरेलल रे कहां से जाएगी? फोकस से। पैरेलल रे अगर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे विल गो थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से चली जाएगी? इट विल गो थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्टेड रे फोकस से चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड, द अदर रे हम ले लेते हैं पोल से। इंसिडेंट एट पोल, पोल पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों रेस तो मीट नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे पोल से जो जा रही है, हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे सो वी सी कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वहां पर हम क्या बनाते हैं? एरो का हेड और यहां से एक लाइन, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जहां पर इंटरसेक्ट होती है, क्योंकि ये दोनों लाइंस हेड से आ रही है, तो जहां पर इंटरसेक्ट होगी हम वहां पर एरो का हेड बनाएंगे और वहां से एक लाइन। तो ये बन गई हमारी इमेज। सो द इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इमेज जो है वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इतनी छोटी सी इमेज बन रही है, सो द इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज कैसी है? मिरर के पीछे, सो इट इज वर्चुअल। एंड इमेज सीधी है तो इरेक्ट। सो दिस इज ऑल विद द रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रे डायग्राम्स देख लिए हैं। Now we are going to see the uses of convex mirror. Okay, convex mirror के uses. So convex mirror के uses है, it is used as a rear view mirror in vehicles. ठीक है, it is used as a rear view mirror in the vehicles. तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, रेयर व्यू मिरर्स क्या होते हैं? जो व्हीकल्स के जैसे हमारे कोई भी स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गए, उसमें साइड में, बाइक में साइड में लगे होते हैं, उसे रेयर व्यू मिरर्स बोलते हैं। तो रेयर व्यू मिरर्स में यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बहुत से बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाई आर कॉन्वेक्स मिरर्स यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, और कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, गिव रीजन, क्यों यूज होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट रीजन इज that the convex mirror forms a diminished image of the object. Convex mirrors जो है वो diminished and erect image बनाते हैं, ठीक है। तो image erect होने की वजह से, क्योंकि वो erect सीधी image बनाते हैं, that is very useful, दो diminished बनाते हैं, ठीक है। The second reason is कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटसाइड होते हैं, उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो ये होता है, ठीक है। क्योंकि वो आउटवर्ड्स कर्व्ड है, इसलिए एज कंपेयर टू कॉन्केव मिरर उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो काफी बड़ा है, ठीक है, काफी लॉन्ग है, यहां से लेके यहां तक का। जो इनवर्ड्स कर्व्ड होते हैं उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो जाता है, फील्ड व्यू जिसे बोलते हैं, फील्ड व्यू कम हो जाता है। फील्ड व्यू मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो क्योंकि वो कर्व आउटवर्ड्स है, दे कवर अ लार्जर फील्ड व्यू। सिंस दे आर कर्व आउटवर्ड्स, they have a large field view, ठीक है। मतलब वो ज्यादा
डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादा चीजें पीछे की देख पाते हैं. ठीक है. Okay, so these are the uses for convex mirrors. So this is all with the ray diagrams and uses for the convex mirror, and this is all for today's class. Thank you.